Okay, good morning, students, and today we will continue networking. But there is a topology. Topology means arrangement of different computers in a network. For example, this is possible that there is a central device and all the computers are connected. This is called star topology. And it is possible that if each computer is connected with all the other computers, so this is topology. So layout of different computers in a network is called network topology. So in a mesh topology, every computer is connected with all the other computers. So if there is a three computers, it means first computer is connected with second, connected with third. Second is connected with one, connected with the third, and third computer connected with the one and two. But there is a one drawback. Uh, Advantage is that if any collapse, if any computer stop the working, the network will continue because there is a multi alternative way. Suppose if computer one stop working, so there is no any disturbance in connection with two and three, तो वो चलते ही रहेंगे. So partial network collapse होगा, पूरा का पूरा network collapse नहीं होगा. पर इसकी जो ड्रॉबैक्स है, नंबर ऑफ वायरिंग, लॉट ऑफ वायरिंग, क्योंकि हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, तो जितने ज्यादा कंप्यूटर्स होंगे उतनी ज्यादा वायर्स होंगी. तो दिस इज सुटेबल व्हेन नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर वेरी लेस. पेपर में इन योर एग्जाम देयर आर क्वेश्चंस what write down any one advantage and one disadvantage of mesh topology और star topology. ये क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और लास्ट ईयर में कंटिन्यूसली ये आ रहे हैं. तो ड्रॉबैक है number of the long wire length required, number of connections required, not suitable for when the number of users are very large. ठीक है, suppose there are 100 users, in that case it is very difficult. If users are 3 or 4 or 5, then networking is okay, this type of networking is okay. Then there is a star topology. In this type of topology, there is a one central storage device, central controlling device. It may be server or it may be switch or hub. ठीक है, बाकी सारे के सारे computers are connected with that. So from here we can control the network. आप यहाँ से किसी भी कंप्यूटर को डिस्कनेक्ट कर सकते हो. तो जो भी दो कंप्यूटर्स में आपस में कम्युनिकेशन होगा, दैट इज विद थ्रू स्विच. इट मींस डाटा का फर्स्ट कम टू स्विच and come to switch or server, then it forward to another computer. uh, there are advantages are easy to troubleshoot. Troubleshoot means find out the errors. Suppose अगर कंप्यूटर नंबर ये वाला कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहा, तो इसका मतलब प्रॉब्लम यहीं पे होगी, इसकी वायर में होगी, ये बाकी कंप्यूटर्स की वायर में प्रॉब्लम नहीं होगी. नेक्स्ट इज ए सिंगल नोड फेलियर डज नॉट इफेक्ट द इंटायर नेटवर्क. तो कोई एक कंप्यूटर खराब हो गया तो बाकी के जो कंप्यूटर्स की जो नेटवर्क है वो कोलैप्स नहीं होगा, जैसे कि मैश में भी होता है, ऐसे ही होता है. थर्ड इज फॉल्ट डिटेक्शन. मीन्स वी कैन इजिली फाइंड आउट कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो वो इजी हो जाएगा. और इन केस ए वर्क स्टेशन फेल, द नेटवर्क इज नॉट अफेक्टेड. इसमें से अगर कोई कंप्यूटर, एक कंप्यूटर भी खराब हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क खराब नहीं होगा. वर्क स्टेशन कहते हैं हम नोड्स को. ठीक है, पर देयर आर सम डिसएडवांटेजेस. इसकी एक लिमिट होती है स्विच की. स्विच होता है 24 पोर्ट का भी होता है, 12 पोर्ट का होता है, 6, 12, 24, 48. ठीक है, अब सपोज the computers are near about 200. In that case we will have to connect more than one switch. So switch की एक लिमिट है, तो उस लिमिट से हम एक्सीड नहीं जा सकते. तो उसके नीचे पीछे जितने पोर्ट होंगे उतने कंप्यूटर अटैच होंगे. मोर देन दैट वी नीड अनदर स्विच. ठीक है, तो उसके बाद वो भी कंप्लीट हो गया, एक और स्विच चाहिए. तो एक स्विच की एक लिमिट होती है, दैट इज अ ड्रॉबैक. लॉन्ग केबल इज रिक्वायर्ड. एक होती है बस टोपोलॉजी, इसमें एक ही वायर के साथ सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं. पर इन दिस केस मोर वायर इज रिक्वायर्ड, बट इट इज लेस देन मैश. मैश से लेस होते हैं, पर फिर भी हमें लॉन्ग केबल रिक्वायर्ड है, क्योंकि हर एक कंप्यूटर किसके साथ कनेक्टेड है, दैट इज कनेक्टेड विद स्विच और हब.
And in case if your hub or switch fail, then entire network fail. Next is bus topology. In bus topology, in a single wire, all the computers and devices are connected. Now, at the both point, यहाँ पे एक होता है कनेक्टर, ये इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, कनेक्टर इंडिकेट करता है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट. अगर आप बुक में भी देखोगे तो वायर जहां से शुरू हो रही है, स्टार्ट हो रही है, एंड द वायर एंड्स, तो वहां पे एक कनेक्टर लगा होता है. कनेक्टर इंडिकेट देयर इज नो एनी कंप्यूटर इन दिस साइड, और लास्ट वाला कंप्यूटर जो होगा एंड में स्टॉप कनेक्टर लगा होगा, वो इंडिकेट करेगा इस साइड में कोई कंप्यूटर नहीं है. एंड जो हम जहां से वायर के साथ कनेक्ट करते हैं वहां पे एक टी कनेक्टर होता है, टी बनी होती है, उसके साथ क्या कनेक्ट हो जाता है, हम वायर को ब्रेक करते हैं उसके साथ. जैसे आप वाटर टैब वाटर पाइप होती है, उसमें भी हम टी लगाते हैं अगर मल्टीपल कनेक्शंस निकालें. इन द सेम वे there is a here is a T connector. When we can join, with the help of that we can join different computers. Now easy to connect and install because there is no any switch, there is no any technical problem there. आपने वायर को ब्रेक करना है और कनेक्टर के साथ अटैच कर देना है. इन्वॉल्व लो कॉस्ट बिकॉज लेस वायर रिक्वायर्ड, कोई स्विच नहीं है, तो इट इज दी हार्डवेयर कॉस्ट इज वेरी वेरी लेस. वी नीड ओनली वन wire and connector is very economical, can be easily extended. अब कहीं पे भी वायर को ब्रेक करो and you can connect more computers, but there are some drawbacks is there कि in case अगर वायर कहीं से भी ब्रेक होगी, पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, कोई कंप्यूटर नहीं. सो ऑल द कंप्यूटर्स विल स्टॉप वर्किंग, ऑल द कंप्यूटर्स. मतलब हमें ये नहीं पता लगेगा कि कंप्यूटर नंबर 1 में प्रॉब्लम है, 2 में प्रॉब्लम है, कहीं पे भी होगा पूरा का पूरा कोलैप्स ऑल द entire network. Second is only because suppose wire is a single wire. अगर इस कंप्यूटर ने इसको मैसेज भेजना है तो पहले ये मैसेज आएगा, फिर सेकंड कंप्यूटर का जाएगा, फिर थर्ड का मैसेज आएगा. बट इन द केस ऑफ स्टार टोपोलॉजी देयर इज ए मल्टीपल कनेक्ट वायर्स आर देयर एंड देयर इज ए स्विच. स्विच क्या करता है, इट इज जस्ट ये आपके डाटा को बफर भी है, बफर मीन उसमें डाटा स्टोर भी हो सकता है, उसके बाद फॉरवर्ड होता है. ठीक है, पर इसमें ऐसा कोई भी नहीं है. इसका मतलब एट ए सिंगल मोमेंट डाटा कैन बी ट्रेवल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, और जो दूसरा डाटा होगा दूसरे कंप्यूटर का, उसको वेट करना पड़ेगा. Next is difficult. Beta, whenever single wire is there, any breakage is there, entire network collapse, हमें ये नहीं पता लगेगा कि प्रॉब्लम किस कंप्यूटर में आई है. तो इट इज ट्रबल शूटिंग और फाइंडिंग द प्रॉब्लम इज वेरी डिफिकल्ट इन द केस ऑफ बस टोपोलॉजी. हमें पूरी वायर को मैन्युअली चेक करना पड़ेगा कहाँ से ब्रेकेज है इसकी. नेक्स्ट इज रिंग टोपोलॉजी. In ring topology, first computer connected with second, second with third, third with the fourth, and last computer is further connected with the one, and create a shape of a ring. So this is a ring topology. And advantages are because one computer connected with only two computers, so that's why less cable required as compared with mesh topology and other topologies. Second is suitable for optical fiber. According to the टेक्निकल रिक्वायरमेंट, जो आपके पास जो रिंग टोपोलॉजी होती है, सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर केबल अगर हमने यूज की हुई है तभी हम इसको प्रेफर करते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट प्रेफरेबल. जैसे स्विच है, यहाँ पे हमने यूज किया, यहाँ पे कैट केबल लगी हुई है, इकोनॉमिकल है, पर स्विच में ऑप्टिकल फाइबर केबल नहीं लगती. ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर अगर हमने केबल यूज करनी है तो हमारे पास कौन सी टोपोलॉजी यूज करेंगे, दैट इज रिंग टोपोलॉजी. हाँ हाँ, यहाँ पे कैट केबल लगी हुई है क्योंकि ये स्टार टोपोलॉजी बन रही है. नेक्स्ट इज नो वायरिंग स्पेस रिक्वायर्ड. क्योंकि आपके पास एक कंप्यूटर दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जो जैसे आपके पास अलग अलग कंप्यूटर पड़े हुए हैं एक उसमें स्विच में,
तो हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, पर यहाँ पे एक कंप्यूटर, ये एक तरह से बस टोपोलॉजी जैसा है। बस टोपोलॉजी में लास्ट और फर्स्ट कनेक्टेड नहीं होते, इसमें है लास्ट और फर्स्ट क्या हो गए हैं, कनेक्टेड हो गए हैं, ठीक है। और इसकी डिसएडवांटेजेस भी वही है, नोड फेलियर इन कॉज नेटवर्क फेलियर, कहीं से भी एक ब्रेकेज विल कोलैप्स नेटवर्क। सेकंड इज डिफिकल्ट, जो जहाँ पे प्रॉब्लम है उसको डायग्नोसिस करना, फाइंड आउट करना डिफिकल्टी कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, वो डिफिकल्ट है। नेक्स्ट वन इज नेटवर्क रिकॉन्फ़िगरेशन इज डिफिकल्ट। अगर हम ये कहें कि ये वाला कंप्यूटर इसके साथ कनेक्ट हो जाए, फिर ये वाला कंप्यूटर इसके साथ, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। अदरवाइज नोड में क्या है, स्विच में आप वायर निकालो, एक पोर्ट की वायर दूसरे पोर्ट में लगा दो, दूसरे की फर्स्ट में लगा दो, आपका सिस्टम चेंज हो जाएगा। पर यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो सारा का सारा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो दीज आर दी different topologies. Now there are different type of network according to the distance. According to the distance, if distance is less than 10 kilometer, so that network is called local area network. So two computers, if distance is not so long, means less than 10 kilometers, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, फिर भी आप इसको लिख सकते हो कि it is 10 kilometer. So this is called a local area network. This is suitable for home, office, or a building. Then metropolitan area network. This is when your network is with different buildings in a city, and और आप इसको स्पेसिफिकली कह सकते हो कि if distance is less than 50 kilometers, in that case this type of network is MAN. And wide area network, when one city is connected with another city or one country with another country, that type of network is called WAN. जो हमने डिस्कस किया था 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का, उसमें ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि इफ हेड ऑफिस इज इन न्यू दिल्ली and the university is in Himachal Pradesh, if we want to connect them, what type of network? So obviously answer is WAN, wide area network. ऐसे क्वेश्चंस उसमें आएंगे आपके पास. So next is protocols. But before discussion of protocols, we will discuss tomorrow these protocols, because in your exams, final exam, there will be full form of the protocols, like full form of HTTP, FTP, TCP, IP, ये पेपर में आती हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि tomorrow we will discuss this, and today we will continue with the MySQL connectivity. Okay. डेफिनेशंस आ सकती हैं पर रेयर होती हैं, पर पेपर में जो अभी तक का ट्रेंड है दैट इज फुल फॉर्म उसकी, पर नेटवर्क उसकी डेफिनेशंस आ सकती हैं। सो स्टूडेंट्स, एनी डाउट? अमरिंदर, अमरिंदर, एनी डाउट बच्चे? यस दीक्षा। सर हमने आपने जब चैप्टर शुरू करवाया था तब आपने कहा था सिलेबस में स्टैक और क्यू दोनों है, आपने सिर्फ स्टैक करवाया था। बच्चे सीबीएसई ने जो आपका सिलेबस डिडक्शन की है उसमें क्यू को आप उन्होंने सिलेबस में नहीं लिया, but according to full syllabus, Q is a part of your syllabus, but for your batch, now Q is not a part, so you have only the stack. Okay beta? Yes sir. Okay. Now सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि why we use connector. Basically whenever you open any website like PNB website या SBI website या CBSE website,
your website is connected with any server, any DBMS server, because data is saved in DBMS server. Now we can fetch the data from DBMS server and display on the screen. वेबसाइट में क्या होता है, जब आप रिजल्ट देखते हो सीबीएसई में, तो सारा का सारा रिजल्ट डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में पड़ा हुआ है, और उस सॉफ्टवेयर में से आप सारा का सारा डाटा फैच करते हो, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करते हो। ऐसे ही जब आप ऑनलाइन बैंकिंग में अपनी स्टेटमेंट चेक करते हो, तो सारा का सारी स्टेटमेंट कहाँ पे पड़ी हुई है, डीबीएमएस सर्वर में, और उस सर्वर को आप विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिविटी आप वेबसाइट में डिस्प्ले कर रहे हो। तो यहाँ पे देयर आर टू थिंग्स, जो जिस तरीके से हम कनेक्टिविटी करेंगे, कोडिंग, उसको हम कहते हैं स्क्रिप्ट। क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट। और हमें एक डीबीएमएस के साथ, अगर हमें पता है कि जब हमने डीबीएमएस के साथ कोई इंटरेक्शन करना चाहते हैं, वी नीड क्वेरी। सो फॉर कोडिंग पर्पस वी हैव MySQL। MySQL से हम इसकी कोडिंग करेंगे और डाटा को फेच करेंगे। और क्योंकि हमारे पास डाटा जो हम सिलेबस में है, दैट इज MySQL। So connectivity can be with any DBMS software. It may be with the MS Access. It may be with the OpenOffice.org base. It may be with Oracle. तो ये अलग अलग DBMS हमारे पास है, और अलग अलग DBMS को कनेक्ट करने के लिए we need a special program that is called connector. इसका मतलब if we need to connect Python with Oracle, we need one connector of Oracle. If we want to connect OpenOffice.org base with Python, we need one connector, that is Python connect, that is base connector. But क्योंकि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं MySQL.connector, because now look at here, because we are using MySQL, so we need MySQL connector. So first of all, we will have to install this, and I have already told you, you will have to install one software, that is MySQL installer. Whenever you will use this, you can install two things. One is MySQL server, ठीक है, दैट इज इन लास्ट ईयर हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है, दैट इज MySQL सर्वर, वो भी इंस्टॉल हो जाएगा, साथ में कनेक्टर भी इंस्टॉल हो जाएगा। सो टू थिंग्स वी कैन इंस्टॉल। तो लेट आफ्टर इंस्टॉलिंग, तो हमारे पास हमने इस कनेक्टर को इंपोर्ट करना है, बिकॉज दिस इज ए मॉड्यूल, ठीक है। इस मॉड्यूल में देयर आर डिफरेंट फंक्शंस, जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल, वी कैन यूज स्क्वायर रूट पावर फंक्शन। If we import random module, we can use random functions. So if we want to set the connectivity with your Python and MySQL, we need MySQL connector. You will have to import this. After importing, there is a one function that is called connect function. क्योंकि connect function किसका पार्ट है? MySQL.connector। क्योंकि हमने जो लास्ट ईयर हमने किया था कि सपोज हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो आई विल राइट SQRT 25, so it will generate error because SQRT function is a part of which module? Math module. So we import math and then math dot SQRT 25. We will have to use the module name before function name. So here is, look at here, connect is a function, and before that, क्योंकि ये MySQL.connector का पार्ट है, तो हमने इसके आगे क्या लगा दिया? MySQL.connector, क्योंकि ये फंक्शन किसका पार्ट है?
MySQL.connector मॉड्यूल का पार्ट है। क्लियर? अब इसमें देर आर पैरामीटर्स, देर आर 4 पैरामीटर्स। वन इज in every MySQL there is a user by default. By default, if you have not created any user, by default it is a root. तो जब भी आप MySQL ओपन करोगे तो look at here, I am opening the MySQL. So here is user is by default always root, and I will have to set the password. Here is no any password, so I press enter key, so I enter. Because in this case password is admin, it means मैंने अपने MySQL में admin password लगाया हुआ है। पर अगर यहाँ पे पासवर्ड नहीं लगा तो आप इसको क्या करोगे, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज मींस एम्प्टी। ठीक है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे MySQL में सिर्फ एंटर प्रेस किया है, मैंने कोई पासवर्ड टाइप नहीं किया, इसका मतलब पासवर्ड नहीं लगा हुआ, तो आपने ऐसे करना है। अब there is a third thing, that is host. We know that whenever we take the example of SBI, in that case your website and the server of DBMS server both are different. तो एक कंप्यूटर में आप वेबसाइट यूज कर रहे हो और आपका डाटा दूसरे कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, पर क्योंकि यहाँ पे जो आप अपने आपके प्रोग्राम आप बना रहे हो वहां पे आपके कंप्यूटर में भी डीबीएमएस भी आपके कंप्यूटर में है और जो कोडिंग भी आपके कंप्यूटर में है, इन दैट केस आपने होस्ट क्या देना है, लोकल होस्ट। मीन सारा डाटा एक ही कंप्यूटर में है, तो इट इज ऑलवेज लोकल होस्ट। पर अगर ये आपका नेट डाटा इंटरनेट में लाइव है, आपके पास सर्वर अलग बना हुआ है और कोडिंग अलग कंप्यूटर में पड़ी हुई है, देन आपके पास यहाँ पे HTTP लगाई प्रोटोकॉल देना पड़ेगा, पूरा पूरा पाथ देना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे आपने क्या लेना है, हमेशा लोकल होस्ट। एंड इन एनी in MySQL we will have to create databases, and in that databases we will have to create tables. तो look at here, अगर हमारे पास यहाँ पे हमने कोई डेटाबेस बनाना हो तो हम कमांड लिखते हैं क्रिएट टेबल, suppose here is ABC and semicolon। तो क्रिएट डेटाबेस, क्योंकि हमने अभी तक डेटाबेस में एंटर नहीं किया अपने, तो क्रिएट डेटाबेस ABC। तो डेटाबेस क्रिएट हो गया, तो यहाँ पे आपने डेटाबेस को क्या लेना है, ABC, क्योंकि मैंने क्या कौन सा क्रिएट किया है, ABC। तो यहाँ पे देयर आर 4 थिंग, यूजर इट विल बी ऑलवेज रूट, पासवर्ड इफ यू हैव गिवन एनी सेट एनी पासवर्ड इन योर MySQL सर्वर, अगर आपने लगाया हुआ है तो सर्वर पासवर्ड दोगे, लोकल होस्ट हमेशा लोकल होस्ट ही रहेगा, और डेटाबेस जिसमें भी आपने टेबल क्रिएट किए हुए हैं उस DBMS और डेटाबेस का नेम यहाँ पे देना है। उसके बाद whenever you connect your coding with your database, उसके लिए उसको हम कहते हैं कर्सर। कर्सर में क्या होता है, डाटा मूव करता है वो फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। जब आप वो क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे, आपकी क्वेरी में से कोई डाटा आपके डेटाबेस में जाएगा, टेबल्स में जाएगा, और वहां से कुछ डाटा आपके कोडिंग में आएगा, आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा। तो ये जो डाटा है जिसे हम कहते हैं कर्सर, तो वी नीड वन कर्सर। तो हमने क्या किया, कर्सर इज अ फंक्शन जो आपकी कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करेगा, और उसको उसके आगे आपने माई कॉन लगाना है, क्योंकि जो आपने कनेक्शन बनाया था, कनेक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, माई कॉन, इट इज ए कनेक्ट रिप्रेजेंटर। अब हमारे पास है, जब भी हमने डाटा एंटर करना है तो हमने सबसे पहले यूजर से पूछा कि एंटर रोल नंबर, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। अब इसका मतलब आर में क्या है आपके पास, वेरिएबल, आर में क्या है, रोल नंबर। अब इस रोल हमें पता है कि हम जब क्वेरी लगाते हैं हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 1, वो तो फिक्स है 1, तो 1 का डाटा देगा। अगर हम यहाँ पे 2 लिख देंगे 2 का डाटा देगा। पर अगर हम चाहते हैं अकॉर्डिंग टू दी वेरिएबल ये डाटा दिखाए, तो हमें यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखना पड़ेगा, और जहां पे वेरिएबल रिप्लेस करेगा वहां पे हमें लगाना पड़ेगा %s। इसका मतलब इन सपोज हमने आर में दे दिया 10, तो यहाँ पे क्वेरी बन गई सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टू
वेयर रोल नंबर इक्वल टू, अगर हमने आर की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे 10 रिप्लेस हो जाएगा, ये आर इसको रिप्लेस कर देगा। इज इट क्लियर? दिस इज द मेथड कि हाउ वी कैन यूज वेरिएबल्स इन ए क्वेरी। अदरवाइज जो आपने माई एसक्यूएल में जो करके देखा हुआ उसमें क्या था कि आपने जब अपने मैं बताता हूँ बेटा, कनेक्ट, आपने यहाँ पे टेबल बना, ये अपने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर ली और उसके बाद अपने टेबल क्रिएट करते हो, क्रिएट टेबल, सपोज टेबल नेम इज स्टू, उसके बीच में आपने ले लिया रोल नंबर इंट एंड नेम करेक्टर 10, ठीक है। अब हमारे पास दो फील्ड्स हैं, रोल नंबर एंड नेम, और ये मेरा प्रोग्राम है, ये हमें डाटा फेच कर रहा है प्रोग्राम में से, ठीक है। वो किस तरीके से कर रहा है कि सपोज हमने यहाँ पे, अभी मैंने यहाँ पे टेबल में डाटा इनपुट नहीं किया, सपोज हमारे पास 10 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, और हमने डाटा देखना है रोल नंबर टैब 5 का, ठीक है। तो मेरी जो क्वेरी बनेगी, अभी टेबल मैंने क्रिएट, अभी यहाँ पे डाटा फिल नहीं किया, तो क्वेरी बनती है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टू वेयर रोल नंबर इक्वल टू सपोज 5, क्वेरी ये बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने प्रोग्राम चलाएंगे प्रोग्राम में ये क्वेरी यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे स्टैटिक, ये जो रोल नंबर है तो वो तो यूजर फिल करेगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ये 5 भी कर दूं तो ये हमेशा रोल नंबर 5 का रिकॉर्ड दिखाएगा। तो इफ आई वांट टू यूज वेरिएबल्स मींस, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये रोल नंबर अगर मैं 5 फिल करूँ तो रोल नंबर 5 का डाटा आ जाए, अगर रोल नंबर 6 फिल करूँ तो 6 का। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ, उसमें इनपुट ले रहा हूँ, उस वेरिएबल को यहाँ पे जहाँ पे मैंने परसेंटेज एस लिखी है उस वेरिएबल को रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास मेथड है। देयर आर टू मेथड्स, एक ब्रैकेट वाला मेथड होता है दैट इज अ न्यू मेथड, एक होता है ओल्ड मेथड, ये ओल्ड मेथड है, ठीक। हाँ, बाकी थोड़ा कल भी हम डिस्कस कर लेंगे ना, ठीक है। सो दिस इज द ओल्ड मेथड। और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे है बेटा, इधर देख लो बेटा, हमने क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाया, करवाने के बाद अब क्वेरी तो एग्जीक्यूट हो गई, अब जो डाटा हमने रिसीव करना है डेटाबेस में से, उसके अलग अलग मेथड है। फेच ऑल से सारा का सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे, फेच वन से सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आएगा, और फेच के साथ आप अगर 5 6 लिख देते हो तो आप नंबर ऑफ रिकॉर्ड, अगर हमने 5 रिकॉर्ड फेच करने तो 5 रिकॉर्ड करेंगे। तो फेच ऑल, फेच वन और फेच मैनी, तो मैनी में आपने जितने दोगे 5, उसके फेच मैनी के अंदर मैं 6 दे दूंगा तो 6 रिकॉर्ड ही आएंगे आपके पास। तो अब आपने उन रिकॉर्ड को देखना है, तो ये सारे के सारा डाटा आपके पास डाटा में पड़ा हुआ है, सारे रिकॉर्ड 1 2 3 4। तो हमने फर्स्ट लूप लगाया, सारा का फर्स्ट रिकॉर्ड किस में आ गया, आर में, तो हमने आर को डिस्प्ले करा दिया। सेकेंड टाइम आर में सेकंड रिकॉर्ड आ जाएगा, सो सेकंड को डिस्प्ले कराया, फिर थर्ड को डिस्प्ले किया, और लास्ट में हमने कनेक्शन को क्लोज करना है। तो कल हम डिस्कस करेंगे देयर आर सेकंड मेथड दैट इज अ न्यू मेथड, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने माई एसक्यूएल कनेक्टिविटी नहीं करके देखी हुई थी, प्रोग्राम जो माई एसक्यूएल इंस्टॉलर इंस्टॉल नहीं किया था, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी भी प्रैक्टिकली नहीं चल रही। तो इस पीरियड के बाद मैं कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कर लूंगा, और कल हम इसके ऊपर कुछ वर्क भी करके देखेंगे, डाटा सेंड करेंगे और डाटा रिसीव करेंगे। फॉर डाटा सेंडिंग वी हैव वन क्वेरी दैट इज इंसर्ट। तो अगर हम यहाँ से कुछ डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं, हम यूजर से पूछेंगे रोल नंबर क्या है, नेम क्या है, जो भी रोल नंबर और नेम यूजर फिल करेगा वो हम डेटाबेस में इंसर्ट कर देंगे। सो क्लियर बेटा? So tomorrow we will do two things. One is full forms. Second one is connectivity. Okay, students, any doubt?